हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ फिजिक्स। आ गए हम एक नए प्रॉब्लम के साथ एंड दिस टाइम इट इज एन ओरिजिनल प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज द स्ट्रेंज बायपैराबोलॉइडल ऑसिलेशंस। सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि दो पैराबोलॉइड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड 2 रो आर फिक्स्ड। दोनों का रेडियस इज r एंड हाइट इज h, and the relationship between h and r is h equals twice of r. Density of first paraboloid is rho and the density of second paraboloid is 2 rho. And the important thing to know is that जो पैराबोलॉइडल सिस्टम है ये पूरा लिक्विड में सबमर्ज्ड है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो डैश. So it is important that uh, the biparaboloidal system is completely submerged into the vessel or into the liquid. So the question we are being asked is, find the time period of small angular oscillations about its axis. So let us give it a try. First of all, we have given a quiet discussion about paraboloids, and उसके बाद हम लोग solution पे proceed किए. So if you know about paraboloids, you can directly skip to the solution. I'll give the timestamp for it. So let us proceed. Definitely give it a try yourself and original. So I'm really excited to present the solution. First of all about paraboloids. So paraboloid is a 3D figure which is depicted by an equation y is equal to kx square rotated about its axis. So हम लोग y axis vertical माने and x axis horizontal, and ये radius r दिया है सवाल में and h रखे हम लोग general h. So we are deriving for a general paraboloid which is definitely not following h is equal to 2r as given the question. So हम लोग y distance पे एक dy width की डिस्क को कट किए हैं जिसका रेडियस इज x. सो लेट अस फाइंड द वॉल्यूम. तो इस डिस्क का वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं पाई x स्क्वायर into its thickness which is dy. So since we know that it follows the equation y is equal to kx square where k is a constant, we can also write that h, which is the height of the paraboloid, equals k into the radius which is x r square. So we have these two equations. On dividing these two equations, we get that x square is equal to y by h into r square. So putting this x square into the equation of dv, which is volume of this disk, this elemental disk, we get pi y r square by h dy, and integrating this from 0 to h, we get the volume of the paraboloid is pi r square h by 2, which is half of the volume of cylinder, and it is important that you should remember this. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this was all about the volume of the paraboloid. अब हम लोग आ रहे हैं center of mass of the paraboloid पे. So there is lot of things written in the board, so just please follow my lead. सबसे पहले center of mass. So we can write center of mass as ycm is equal to integral of tm y by integral of tm. So we can write dm as density times जो भी डिस्क या फिर जो भी एलिमेंटल डिस्क हम लोग ले रहे हैं. सो डेंसिटी इसका हो जाएगा m, कैपिटल M, जो हम लोग पूरा मास मान लिए इस पैराबोलॉइड का, एक पैराबोलॉइड का. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो m बाय पाई आर स्क्वायर h बाय 2 जो हम लोग अभी निकाले वॉल्यूम, एंड इसी एलिमेंटल डिस्क का वॉल्यूम. सो वी गेट दिस फॉर tm, substituting this for ycm, and then putting this x square is equal to y by h r square from the equation we derived in the previous slide. So we get that ycm equals, and integrating this from 0 to h, so we get that ycm, that is center of mass of this paraboloid, is 2 by 3h from the top, and from the top means from this point, from the tip of the paraboloid. So एक चीज है कि हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे. अगर यहाँ से हम लोग सेम इक्वेशन निकालते, एलिमेंटल डिस्क लेते एट अ डिस्टेंस x और समथिंग, जनरल y जनरल x,
फ्रॉम दिस बेस, तब हम लोग को सेम आंसर मिलता, जिससे यहाँ पे जिससे यहाँ पे आता जो सेंटर ऑफ मास। लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती कि इस पॉइंट पे जो x है आपका, दैट इज r, जो यहाँ पे r सब्स्टिट्यूट हो जाता, लेकिन इस पॉइंट पे y जो है आपका, दैट इज 0। अगर हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लेते, तब फिर थोड़ा इशू क्रिएट होता, जिससे हम लोग को करेक्ट आंसर नहीं मिलता हम लोग को 2/3 लेकिन फ्रॉम द बॉटम, जो मिस्टेक मैं यहाँ पे लिखने वाला था। सो डेफिनेटली कीप एन आई ऑन इट। नाउ we have got to the final part, moment of inertia of the paraboloid about its base, which is diametrically. ये काफी कम डिस्कस हुआ है, that the moment of inertia of any object about its base, like of cone and paraboloid, तो एकदम नहीं ही हुआ है कहीं पे भी. So let us give it a try, and believe me, if you are able to achieve this concept, then of course you can find moment of inertia of any body about any axis. So first of all, moment of inertia, general moment of inertia equals integral of dm r square, and so हम लोग सिंपली dm लिख लिया फ्रॉम व्हाट वी रोट इन फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास। लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड अबाउट दिस बेस एंड विच एंड डायमेट्रिकली। सो इसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम मान के क्या किए हैं, y पे एज मतलब एलिमेंटल डिस्क काटते हैं एट ए डिस्टेंस y, whose radius is x and width is dy. So इसी डिस्क को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ पाई एक्स स्क्वायर, जो इसका एरिया होगा टाइम्स its thickness, which is dy. So and we know that moment of inertia of a disk along its base is mr square by 4 from the perpendicular axis theorem. तो अब हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस बेस। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ तक लिखते, सिर्फ ये नहीं लिखते, अभी फॉरगेट दिस, अगर सिर्फ हम लोग लिखते मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएम वाई स्क्वायर, देन वी वुड गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, बट वी वांट अबाउट वाई एक्सिस। सो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि वी रोट dm of y square, which is इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दैट उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर x डिस्टेंस। सो यहाँ पे जो हम लोग का y है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस डिस्क का निकला, तो अगर हम लोग सिर्फ ये लिखे रहते तो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पूरे सारे ऐसे डिस्क इंटीग्रेट हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग को जीरो से एच तक इंटीग्रेशन करना था। लेकिन सिंस वी हैव रोट प्लस डी एम एक्स स्क्वायर, जिससे हम लोग एक और डिस्क कंसिडर कर दिए एट अ सेम डिस्क एट डिस्टेंस ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स हम लोग ये है, एंड हम लोग इसे कुछ और नहीं माने लाइक वाई डैश या फिर एनी अदर कॉन्स्टेंट, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट, वी नो अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, so हम लोग उसी x डिस्टेंस पे मान लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ नहीं समझ में आ रहा है सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई योरसेल्फ एंड रिवाइंड इट सो दैट यू कैन गेट इट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिए, सो इसे हम लोग सब्सटीट्यूट किए यहाँ, एंड यहाँ पे बाय 4 कर दिए, बिकॉज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क along its base is mr square by 4, so dm into y square and x square respectively by 4, taking this common and integrating from 0 to h, we get the moment of inertia of a paraboloid about its base, which is diametrically equal to mh square by 8 plus mr square by 6. So I hope ये समझ रहे होंगे कि हम लोग कैसे कैसे किए हैं प्रोसीड इसमें। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए एंड फिर से देखिए। सो फाइनली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, तो हम लोग पैराबोलॉइड को एक छोटे से एंगल थीटा पे रोटेट कर दिए, एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग व्हाट इज रो नॉट, उसका जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग निकाल दिए। सो रो नॉट हम लोग निकाल सकते हैं, सिंस दिस डिस्क इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड वी कैन राइट द बुओयेंसी इक्वल टू द वेट। सो बुओयेंसी हम लोग लिखिए रो नॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ
the biparaboloidal systems and the weight of the system, which is first of all पहला जो पैराबोलॉइड है उसका डेंसिटी रो है, तो रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, एंड दूसरे पैराबोलॉइड के लिए उसका रिस्पेक्टिव वॉल्यूम एंड उसका रिस्पेक्टिव डेंसिटी. सो वी गेट रो नॉट इक्वल्स 2/3 रो. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. सो ये इसका डायग्रामेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मास m, सिंस जो ऊपर वाला पैराबोलॉइड है उसका डेंसिटी इज रो, तो हम लोग सीधे सीधे कह दिए कि उसका मास शुड बी m, एंड सिमिलरली दूसरे वाले पैराबोलॉइड का 2m. सो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस असेंबली. इन सेंटर ऑफ मास कहीं और लाई करना चाहिए, सो इसे मैं y एक्सिस माना है, इसे x एक्सिस. सो सेंटर ऑफ मास कैन बी डिनोटेड यहाँ पे -2mh/3, जो कि हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाले. जो सेंटर ऑफ मास कोई भी सिस्टम का होता है, सॉरी ऑफ अ पैराबोलॉइड का, तो वो टिप से 2h/3 डिस्टेंस पे होता है. सो सेंटर से h/3 पे होना चाहिए, एंड वही h/3 हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट किया है. एंड सिमिलरली सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं. सो सेंटर ऑफ मास वुड बी नेगेटिव ऑफ h/9, एंड नेगेटिव मीन्स इट इज लेफ्ट साइड. सो यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे रिप्रेजेंट किए, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए. सो जो इस पूरे असेंबली का मास है वो सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, लेकिन जो बोयेंसी है, the buoyancy force should be acting on the center of buoyancy of the system, which remains the same, which is the center of this assembly. So proceeding forward and finding the moment of inertia about center of mass so that we can equate it with tau is equal to I alpha, which is torque equals moment of inertia into the angular acceleration. So हम लोग लिख सकते हैं I naught, which is I about this, I naught नहीं I about this O equals दोनों पैराबोलॉइड्स का सेंटर, दोनों पैराबोलॉइड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस स्पेस जो हम लोग पहले निकाले. सो यहाँ पे m एंड दिस 2m गेटिंग दिस विद h is equal to 2r. सो हम लोग का IO निकल गया 2mr², एंड फाइनली by the parallel axis theorem we can find that IO equals ICM plus 3m total mass of the assembly plus the distance of center of mass from the axis. We have to find the moment of inertia. So we know the moment of inertia about this axis, which is IO, लेकिन हम लोग को चाहिए about the center of mass. तो हम लोग सीधे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज, एंड वी गेट ICM equal 150/81 mr². So finally we proceed to the final solution. So ICM अपना निकल गया यहाँ से 150/81 mr², and now finally equating tau about center of mass equals negative ICM alpha. Negative यहाँ पे cause the torque is the restoring torque जिसके कारण angular oscillations हो रहे हैं. So we can write the buoyancy force as 3mg, and from center of mass, which we can see from the previous page that अगर सेंटर ऑफ मास से हम लोग टॉर्क लिखें तो बुओयंट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इससे हम लोग एंगल थीटा माने, तो ये हो जाना चाहिए r sin थीटा. ये r sin थीटा हो गया. तो इस पॉइंट के अबाउट बुओयंट फोर्स का टॉर्क होगा b टाइम्स r sin थीटा. सो b टाइम्स r sin थीटा इक्वल्स नेगेटिव 150 mr² ICM जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं इंटू अल्फा, एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल sin थीटा इक्वल्स थीटा. So finally, on simplifying, we get alpha plus 18 g theta by 50r equals 0, and which is the differential equation for angular oscillations, which is theta double dot plus omega square theta equals 0. And finally substituting this into t is equal to 2 pi by omega, we get time period of angular oscillations equal 2 pi whole under root 50r by 18g. So I hope you like this original problem. It was very fun, and definitely अगर आप पूरा solution देखे होंगे, so your concepts of fluid mechanics, fluid statics,
SHM, and rotational mechanics, which is finding of moment of inertia and torque, काफी strong हो गए होंगे. Please do like, subscribe, and comment on this original problem, and we'll be up there with higher frequency of problems. So please show lots of love towards our channel. Thank you very much.